ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜੀ ਵਾੜੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤੁੱਕ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ। और पैसों के लेन देन पर ही झगड़ा हुआ है। ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇਲਜਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੇਲਜਾ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਠਾਤਾ। उनका कहना है कि हमें ईंटों से मारा गया है। मुंडे दो में बाप बेटा तो नस गया कि उसके एक नोज के ऊपर इंजरी है कि उसके ब्रूजेस यहाँ पर आए हुए हैं। APNN की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। APNN न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़िशान अली चिश्ती। नाजरीन, आज मेरे साथ ये जो दो मुलजिम आप देख रहे हैं ये कत्ल के मुलजिम हैं और इन पर इल्ज़ाम है कि महज 1200-1500 की खातिर इन्होंने एक बंदे का कत्ल कर दिया। और मैं दोबारा बताता चलूँ कि इल्ज़ाम है सिर्फ, और हम इस बारे में इनसे पूछते हैं कि इस इल्ज़ाम में कितनी सदाकत है और मामला क्या पेश आया, इसकी रुदात क्या है, कहानी क्या है, इनकी ज़बानी सुनते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किस तरह से वो कत्ल हुआ और ये क्या इसका माजरा है? ਸਰ वो हमारे साथ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਠੇਕਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਈਦਾ ਸੀ 600 ਰੁਪਿਆ ਫੇਰੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਟਰਾਲੀ ਸੀ, ਟਰਾਲੀ ਦਾ 600 ਰੁਪਿਆ ਅਸੀਂ ਫੇਰੇ ਦਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਨੇੜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾ ਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਯਾਰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫੇਰਾ ਦੀ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਫੇਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੋ ਟਰਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਖੁੱਭ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਟਰਾਲੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਬੜੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਖੁੱਭ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ। ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ 2 ਟਰੈਕਟਰ ਪਾਏ ਲੋ, ਟਰਾਲੀ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਜੱਕ ਚੁੱਕ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੁੱਕਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜੀ ਵਾੜੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਲੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਭਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਲੀ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿੱਟੀ ਸਟਾਮ। ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿਆ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵੇਖ ਨਾ ਜਿਹੜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਨ ਤੇ ਲੱਥਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤੁੱਕ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫਿਰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੋਂ ਬਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਹੱਥੋਂ ਬਾਈ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਲ ਘਸੁੰਨ ਵਾਇਲ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ ਨੂਰ ਤੂੰ ਵੀ ਫੜ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੜਨਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣੇ ਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਛਡਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇਲਜਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੇਲਜਾ ਫੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਠਾਤਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸਲੇ ਬੇਲਜਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਸ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਰ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੇਲਜਾ ਵੱਜਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰ ਹੋਇਆ। ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਉੱਥੋਂ ਨਸ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ। ਡੋਲਫਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੈਂ 1 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨਾਲ ਡੋਲਫਿਨ ਆਈ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਡੋਲਫਿਨ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਲਚਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੇ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀ? ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ? ਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 50 ਬੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5-7 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਉਸਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਇੱਧਰ ਬੈਠਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ महकमा ਲੈ के। जी नाजरीन, मेरे साथ इस केस के तफ्तीशी इजाज़ चीमा साहब मौजूद हैं, तो इनसे पूछते हैं कि असल कहानी क्या थी जो तफ्तीश में सामने आई है। इजाज़ साहब, जो बात उन्होंने बताई है मुलजिमान में, उसमें कितनी सदाकत थी, और आप बताएं कि असल कहानी क्या है इसकी? इनका झगड़ा मरने वाले और उसके बेटे के साथ हुआ है। ये इसके भाई को जो चोट लगी है वो दौरान लड़ाई ही चोट लगी है मकतूल पार्टी से, और पैसों के लेन देन पर ही झगड़ा हुआ है। जब ये गिर पड़ा है तो वो दोनों बाप बेटा चले गए हैं। घर जाकर पता चला गया कि वो उसकी डेथ हो गई है। उनका कहना है कि हमें ईंटों से मारा गया है। जब उनके मैंने सरसरी मुलाजा किया और डॉक्टर साहब ने भी उसके जिस्म का मुलाजा किया, तो कोई इंजरी, कोई जख्म वगैरह नहीं था। ईंटों का कोई निशान वगैरह 2 इंजरीज आई हैं, एक नाक पर इधर जो नज़र नहीं आ रही थी, खराश टाइप थी, वो हाथ वगैरह या मुक्का लगने की जो लिखी है उन्होंने। इसी वजह से उन्होंने टॉक्सी और पैथोलॉजी वो रिपोर्ट हासिल करने के लिए जो मवाद है वो PFSA को भिजवाया। आफ्टर रिपोर्ट
कंसिडर हो जाएगा कि ये इसकी काज ऑफ डेथ क्या है, ईंट के साथ ये मरा है या कोई और। तो इसकी सज़ा क्या होगी? और अगर इस पे पता चलता है कि बाद में कोई मसला बना था, हार्ट अटैक वगैरह, तो फिर गालबन 322 लगाई जाएगी। आफ्टर केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट से पता चल जाएगा कि ये कैसे मरा है। अगर तो वो ईंट की डेथ से, उसकी ईंट से डेथ हुई है, फिर तो वो सीधा 302 में सजाए मौत होगा। और अगर वो रिपोर्ट आ जाती है कि जब उसने देखा है कि मेरे बेटे से एक बंदा शदीद ज़ख्मी हो गया है और उसकी वजह से उसने ये पेन ले ली है कि शायद हमारे से कोई बंदा मर गया है, तो उसको कुछ हो गया है तो वो मर गया है, उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी, फिर ये इनोसेंट हो जाएंगे। अच्छा नाजरीन, ये थे हमारे साथ एजाज चीमा साहब, जिन्होंने सारी असल कहानी हमें बयान की और इस केस के हवाले से मज़ीद जानते हैं कि इस केस का फर्दर क्या बनेगा। तो इस बारे में हम इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद कमर अब्बास साहब से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि अब इस केस का क्या होने जा रहा है। जी नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना अंजरवाल मोहम्मद कमर अब्बास साहब मौजूद हैं। तो इनसे पूछते हैं कि सर, अब आपको क्या लगता है कि इस तफ्तीश का या इसकी एज ए इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन आपको क्या लगता है, इसका क्या नतीजा निकलेगा और इस केस को कहाँ पे आप देख रहे हैं? असल में जो है इंसिडेंट बेसिकली जो है इनकी इंस्टेंट एक लड़ाई हुई है वहाँ पर, ये मिट्टी डालने की वजह से और जो है वो ट्राली को आगे पीछे करने की वजह से। वहाँ पर जब लड़ाई इनकी हुई है तो एक जो है एस्पेक्ट ये है, जो एनी शाहिदीन और जो है वो अक्यूज जो बता रहे हैं, एनी शाहिदीन में से भी जो है वो मिक्सअप राय ये आ रही है कि ये बंदा का जो है वो हार्ट अटैक हुआ है। और उसके अलावा ये कह रहे हैं कि जो कंप्लेनेंट पार्टी है ये फरमा रहे, ये कह रहे हैं कि जो है उसको इंजरीज की वजह से जो है इसकी डेथ हुई है। अगर तो ये इंजरीज की वजह से डेथ हुई है तो 302 में ऑब्वियसली चलान होंगे। अगर कोई फॉरेंसिक लेबॉरेटरी की तरफ से जो है कोई रिपोर्ट ऐसी आ जाती है कि इसमें कोई हार्ट अटैक आ जाता है, तो तब जो है 322 या 316 में जो है इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है, मतलब अगर आप थॉरली देखें तो आपको क्या लगता है कि इसमें वाकई ही कोई हार्ट अटैक वाला आंसर शामिल हो सकता है या उसमें ये है कि लड़ाई तो इनका, झगड़ा तो इनका हुआ है, उसकी वजह से जो डिसीज बॉडी है उसको मिला था कि उसके एक नोज़ के ऊपर इंजरी है कि उसके ब्रूजेस यहाँ पर आए हुए हैं, मतलब झगड़ा तो इनका हुआ है। नाजरीन, ये हमारे साथ मौजूद थे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद कमर अब्बास साहब। नाजरीन, मुझे इस मामले में ये लगता है कि इस तरह के हमारे जितने भी वाक़यात हम देखते हैं, कत्ल के वाक़यात ख़ास तौर पे देखते हैं, तो माशरे में अदम बर्दाश्त का मामला सामने आता है कि हम में अदम बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है। अगर हम उस वक़्त किसी की बात को बर्दाश्त कर जाए, वो बात ना सिर्फ बर्दाश्त करना सुन्नत है, हमारे दीन का हिस्सा है, बल्कि हमें कई जराइम से, कई गुनाहों से बचा सकता है। तो मेरी तमाम लोगों से यही सदा है कि अदम बर्दाश्त का जो मामला, इसको ख़त्म करें, लोगों की बात सुने, सब्र व तहम्मुल के साथ बात सुने और उसको माफ़ कर दिया करें। इसी के साथ ज़िशान चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।